Good morning, students. So, this is my second video for system of units. You know that we are doing the chapter number 1, unit 1, I should say, physical word and measurement of physics. The first part, A part, introduction, we have completed. In introduction, we have done the definition of physics, relation of physics with the technology, society, relation with the other sciences, and we did the fundamental forces and the laws, nature laws in it. Now, system of units we have started. In it, half part we have completed, half we are going to complete today. In a half part, we have stated that what is unit, on what criteria we are following to select the unit, and different types of units, CPS, MKS, FPS, SI system we have studied, right? 7 fundamental units and 2 supplementary SI we have studied. Now today, the half part of the system of units we are going to complete some important units. बेटा मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਿਆਂ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ 20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਨਾ। ਜੋ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਚੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2 ਸਟਾਰਸ ਨੇ और स्टार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ और जो यूनिट है वो सही नहीं है इस ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਹੀ यूनिट ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਲੰਬੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ जो यूनिट चुनते हैं उन्हें सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU के नाल को लिखते हैं। You know that here is the sun at the one position and earth is revolving around it. Here the earth distance in its path is larger and here is smaller. अगर ਅਸੀਂ कहें कि सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है आज तो वो गलत हो जाएगा कहना। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा है, इतने घट है, इक्वल होगी ज्यादा सही से, पर सानू हुण एवरेज लेनी होगी। इस डिस्टेंस की भी इन्हां दी सारी डिस्टेंसेस जो होंदी है इन्हां दी एवरेज दा एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ दे विच कितनी होगी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नॉट द एवरेज डिस्टेंस between sun and earth, between sun and earth इन्हों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। in 1.496 10 की पावर 11 मीटर होती है। approximately we can write 1.5 10 की पावर 11 meters। okay, this is किमें को रिमेंबर करना है मैं तो बात दसूंगा। सेकंड यूनिट लाइट ईयर। लाइट ईयर तुसी ऑलरेडी एल वाई के नाल जो लिखे जाता है स्मॉल एल एंड स्मॉल एल। एक छोटी क्लास में देखे बेटा तुसी पढ़ा है, आपने पढ़ा है बेटा छोटी क्लास में। लाइट ईयर कोई ईयर नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है। इट इज द डिस्टेंस traveled by light in vacuum in 1 year। एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜੋ ਚਲੀ, इट इज द डिस्टेंस। देखो फर्स्ट लाइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एवरेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस है ना। तो लाइट ईयर जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी है ना। हमारे पास फार्मूला होता है वेलोसिटी और स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर
1 day means 24 hours, 1 hour means 60 minutes, and 1 minute means 60 seconds. So this way we will find out second per second meters. Okay, and this value will be approximately 9.46 into 10 to the power 15 meters. Okay, light year values. Now let us take the third one, the PAR per second. Short में हम इसको parsec बोलते हैं, parsec. Okay, what is parsec? It is the biggest unit from all. कैसे biggest बेटा? Just imagine you have a circle, and in this circle you are taking one arc of 1 astronomical unit length of this length. इतनी लंबी ये length है. Join these with the center, and if this angle is 1 second, a second की होता है मैं दस्ता हूं 1 second, then the radius of this will be parsec, 1 parsec. ठीक है, देखो ए जी 1 अगर एस्ट्रोनॉमिकल ना समझो मैं तो उसमें जान लेना ये 1 सेंटीमीटर है मान लो. ठीक है, तो अगर मैं ये बड़ा सर्कल है ना और 1 देखो इसमें एम में मिलावा तो 1 सेंटीमीटर तक इतना होएगा, और ए सेंटर के बीच जो एंगल बनाएगा वो तो अलग बनेगा. मतलब कंडीशन समझो कि इसकी लंबाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और इसने सेंटर के बीच 1 सेकंड का एंगल बनाया होगा, ता जो रेडियस बनेगी. ए अगर कंडीशन नहीं होगी तथा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तब ए भी 1 सेकंड है ना, तथा ये तो बहुत सारिया रेडियस वाले सर्कलों की आर्क हो सकती सी, छोटे रेडियस की भी बड़े वाले की भी हो सकती सी है ना, पर कंडीशन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ के लिए लाती कि सेंटर से एंगल बनना होगा होगा, ता जो रेडियस बनेगी वो पर्टिकुलरली 1 parsec बनेगी. ओके, लेट मी राइट अ डेफिनेशन. 1 parsec इज द रेडियस. मैं कई बार कहता होता है बेटा कि जो पहली वाली लाइन है, लाइन द पहले अल्फाबेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. parsec इज द रेडियस, ए रेडियस ऑफ ए सर्कल whose 1 astronomical unit length arc make 1 second, look here second angle at the center. कितनी ये वैल्यू है 1 parsec? 1 parsec होता है 3.1 10 to the power 16 meters. Okay, 16 meters. ये होता है. ਹੁਣ ਇਹ सेकंड की होया, मैं एक बार फिर को रिपीट करूंगा, ये वाली चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी कि अगर तुसी एक सर्कल बनाया ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆर्क ਲਈ 1 astronomical unit ਲਾਓ और वो सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ 1 सेकंड ਦਾ एंगल ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਏਗੀ वो 1 parsec और वो रेडियस पक्का ही बढ़ेगी 3.1 10 की पावर 16. अच्छा समझ आ गया बेटा. ਹੁਣ सेकंड ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्रोटेक्टर ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ज्योमेट्री बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, एवं लिखा होता है 0 to 90 है ना. नेचुरली इस जगह पे एक एंगल पक्का 1 डिग्री भी होएगा है ना. इस पे बीच अगर तुम 60 लाइंस लगाओ 60 लाइंस तो एक लाइन जो एंगल बनाएगी वो वाला 1 मिनट एंगल बनेगा. मतलब कि 1 डिग्री दे बीच 60 मिनट्स होते हैं. जिवें ਆਪਾਂ कहते हैं ना 1 आवर ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ 1 ਮਿੰਟ ਬਣਿਆ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲਾਈਨਸ ਹੋਰ ਜੋ
which अगले होर 60 सेकंड्स में लगे होता बेटा। तो ए वाला एंगल देखो कितना छोटा होएगा, आ वाला एंगल इनको बोलते हैं पार्सेक। ओके, अच्छा हुण मैं तुहानू रिमेंबर करने का तरीका दसूंगा, ठीक है। रिमेंबर करने का देखो 15 और 11 समझो, मैं दो पैरामीटर इतने पढ़ रहा हूं, ठीक है। ए पैरामीटर्स ए लगभग 10 और 15, ठीक है, और ए वाला पैरामीटर 31 और 16। यही दोनों का हो रहूंगी ना बेटा, ये पहले वाला क्या लिखा और 10 की पावर कितनी है ना। वो देखो ये तो तुम याद रखना होगा, एस्ट्रोनॉमिकल पहले सी, लाइट के बाद सी, पार्सेक सबसे बड़ा सी, ठीक है। देखो ए ब्रदर सिस्टर है, ए भी ब्रदर सिस्टर है, ए भी ब्रदर सिस्टर है, ठीक है। इना दे विच 4 इयर्स का गैप है, इना दे विच 5 इयर्स का गैप है, और इना दे विच बहुत ज्यादा 15 इयर्स का गैप है। बस इतना का याद रखना, समझा रहा। 1.5 into 10 की पावर 10 into 10 की पावर 15, 10 ये वैल्यू 9.46 तो एग्जैक्ट याद रखनी पड़नी है, अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर ही है। इथों दे देखो 496, 500 से थोड़ा सा घट है, और ए 1000 से थोड़ा घट है। यही पैरामीटर 946 के पीछे कितने ना, तो ये याद रहती है, कोई बड़ी बड़ी गल नहीं है। तो 9.46 अप्रोक्सीमेटली 10 और 10 और 15। ए ब्रदर सिस्टर 15 लेवल दे, मान लो तुसी हो, तुसी सिस्टर हो 15 साल दी, ਤੁਹਾਡਾ ब्रदर 11 इयर्स ਦਾ है ना। अपने अपने हिसाब नाल कर सकते हैं, वाइज 15 ब्रदर समझ सकते हैं, है ना। ये उल्टे हो गए ब्रदर सिस्टर्स, आगे पीछे आ गए, है ना। 10 15 इतने 5 इयर्स का, और इतने बहुत ज्यादा गैप है, 31 साल का, एक 16 साल का है। ओके 3.160 इस तरह तुम याद रख सकते हो, बड़े आराम नाल याद रहता होगा। मैं तो बाद च रिपीट करूंगा, तो बहुत अच्छा समझ आएगा। नो रिलेशन, रिलेशन की है इन्हें दोनों के बीच रिलेशन बहुत कॉमन यूज होता है। 1 पार्सेक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर्स। अगर तुम पार्सेक को 3.1 10 की पावर 16 मीटर को 9.46 10 की पावर 15 नाल डिवाइड करो, ओके, देन यू विल गेट 3.26। मतलब की होया, एक पार्सेक लगभग है ना 3.26 सवा 3 है ना टाइम्स लाइट ईयर से बड़ा होना है। इन्हें कब समझा जी बेटा, क्लियर। सो ये बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो बेटा आपको यूज करने हैं बड़ी डिस्टेंसेस के लिए। जैसे आप बोलोगे कि 2 स्टार्स हैं, उनके बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है, या 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है, या 12 है, या लाइट ईयर में बोलोगे तो है ना, लाइट ईयर बोलोगे 2 लाइट ईयर, 2 स्टार्स हैं 2 लाइट ईयर डिस्टेंस पे, सिंपल हो गया 2 लाइट ईयर्स कितना हुआ, उसे मल्टीप्लाई कर लोगे पता लग जाएगा कितने मीटर हुआ, है ना। समझा रहे हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं ये यूज होते हैं जब आप बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करो, ठीक है। लग गया पता। एक बार फटाफट से रिवीजन लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर एंड पर सेकंड मींस पार्सेक, ओके। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आपके 2 ब्रदर सिस्टर्स है ना। सिस्टर कितने साल की है, सिस्टर कितने साल की है 15 इयर्स की, और ब्रदर 11 का हो गया। अब ब्रदर जो है वो पहले आ गया 10 की अप्रोक्सीमेटली, और जो सिस्टर है अब वो कितने साल की है, ये 15 की होगी। अब ब्रदर और सिस्टर में बहुत फर्क है ना, 31 एंड 16 इससे बड़ा है। तो देखो याद हो गया ना आपको बेटा, ये इस तरह से याद, ओके। अब ये तो हो गए बेटे बड़े बड़े यूनिट्स जो आप यूज करोगे। अब छोटे छोटे यूनिट्स माइक्रो मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। जो माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मेजरमेंट्स लाइक हम बोलते हैं बेटा कि ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पड़े हैं, न्यूट्रॉन पड़े हैं, है ना। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है या इलेक्ट्रॉन का जो भार है, अब इलेक्ट्रॉन किलो में तो हो नहीं सकते, देखो इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ये डेंसिटी होती है 10
इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर, तो वो तो दिख भी नहीं रहे है ना, माइक्रो, इतने माइक्रो हैं, इतने छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कहीं देखे गए, बहुत हाईली रेजोल्यूशन वाला कोई माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है। तो अब हमारी बात हो रही थी कि अब हमने इनके जो डिस्टेंसेस हैं इनके बीच में वो पता करने हैं, तो कैसे पता करें? तो हम कहेंगे कि ये तो माइक्रो में है, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो को इस तरह से लिखा जाता है, माइक्रो एंड 10⁻⁶ मीटर, इस तरह से माइक्रो होता है ना। आपको इस अल्फाबेट के बारे में बताया था, मैंने म्यू बोलते हैं ना इसको बेटा, ओके। दैट नैनोमीटर, नैनो कार होती है ना, नैनो बोलते हैं इसको, नैनोमीटर। 10⁻⁹ नैनो से पता लग रहा है 9, ओके। नैनो कार क्यों बोलते हैं? बहुत छोटी है इसलिए। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ए, दिस इज 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं शॉर्ट में, ओके। जैसे किसी ने बोल दिया 2 एंगस्ट्रॉम लेंथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 × 10⁻⁻10 मीटर, लग रहा है बता बेटा। फर्मी, यहां तक 15 तक आपको पता होना चाहिए, फर्मी, ओके। इसका मतलब फर्मी मतलब 1 फेम्टोमीटर बोलते हैं इसको, फेम्टोमीटर, है ना। 1 f से लिखते हैं 10⁻⁻16 मीटर्स, ओके। सो दिस इज माइक्रोमीटर। मतलब माइक्रोमीटर अगर आप बोल दोगे तो उसका मतलब है 10⁻⁶, नैनो 9, एंगस्ट्रॉम 10 एंड फर्मी 15, ओके। अब देखो अभी मैं बात कर रहा था बेटा कि अगर हमने मास मेजर करना है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसे, AMU, ये कितना होता है? 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो बेटा, अगर हमने सोना तोलना हो तो हम किलो में नहीं बोलते भाई 2 किलो या भाई 10 किलो सोना दे दे, है ना। अपन बोलते तोड़े दे दीजिए, आधा तोड़ा, 1 तोड़ा, है ना। उसी तरह पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत छोटा है, किलोग्राम से कितना देखो घट है, तो उस वास्ते 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इस तरह करके इनको शॉर्ट यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट, राइट। तो इस तरह करके उस मास को बोला जाता है, छोटे मास, ठीक है। कुछ प्रीफिक्सेस मैं तो करवाना चाहूंगा, प्रीफिक्सेस we are taking power of 10, I am writing here 10⁻⁻1 -2 -3 -6 -9 -12 -15, okay. These must be non-trivial. In the same way 10⁻1 2 3 6 9 12 and 59 here. Total these are 14s, okay. You're very familiar with some, like you're familiar with this, already. You are using these many times. You're using this nano, you are using, okay. Mega also you are using. So others we are going to do, right? Like 10⁻⁻1, it is called deci, है ना, decimal, अपन लगाते हैं decimal, लगाते हैं a, decimal बन गया। decimal का मतलब क्या होता है बेटा? 1/10, है ना, 0.1। लग रहा है पता कहां से है डेसिमल्स? D सिंबल से इसको नोट करते हैं। जैसे हमने कहा एक डिस्टेंस है वो 1 डेसिमल है, 1 डेसिमल का मतलब 0.1 मीटर, जैसे क्या डेसिमल। 10⁻² मींस सेंटी, जैसे बोलते सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंटी का मतलब 10⁻² मीटर, -2 मीटर, सिंपल, ओके, सेंटीमीटर। सो -2 पावर में सेंटी, सी से लिखते हैं, ऑलरेडी हम लिखते हैं, हमें पता है। 10⁻³ मिली, है ना, 1 मिलीमीटर, मिली इज 10⁻³ इस मिली की जगह क्या है? 10⁻³ एंड मीटर्स। 10⁻⁶ माइक्रो, ये तो अभी भी हम यूज कर रहे थे, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो इज 10⁻⁶। नैनो 10⁻⁹, 10⁻⁴ मींस पिको,
100 से देखो हेक्टो बना ऐसे 10 की 3 किलो, ये तो पता ही है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, किलो मतलब व्हाट 10 की पावर 3 ग्राम, दैट 10 की 3 मींस किलो, ऑलरेडी यूज करते हैं। मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6, ठीक है 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर टेरा, 10 की 15 पीटा। ये कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं, मेगा एम, गीगा जी, टेरा टी, पीटा पी। दिस इज डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा। ओके, now the last topic I am taking of this system of unit chapter, conventions for writing units. बेटा ये पेपर में नहीं आएगा, ये टॉपिक पेपर में आने वाला नहीं है, लेकिन ये आपको यूज करना है हर जगह, आपका बेसिक नॉलेज है। हम यूनिट जब भी लेंगे तो हम कैसे उसको लिखेंगे, हमेशा हम उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम ही है ना। जैसे हम कहते हैं न्यूटन, तो ऐसे लिखना है न्यूटन, 1 न्यूटन, ऐसे नहीं कि कैपिटल लगा दिया, नो, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। अगर सिंपल बना लेते हो आप इसका, है ना, जैसे हम लिखते हैं 1 न्यूटन, तो इसको शॉर्ट में 1 न्यूटन ऐसे लिखेंगे। अगर साइंटिस्ट के नाम से यूनिट बनाया गया है, किसी साइंटिस्ट के नाम से, तो जब आप उसका सिंबल बनाओगे तो लेटर कैपिटल कर दोगे, लेकिन अगर आपका साइंटिस्ट के नाम से नहीं है तो कैपिटल नहीं करना है ना, तो कैपिटल नहीं करना। जैसे मैं कहूं 1 मीटर, 1 मीटर, तो हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, तो स्मॉल एम से ही लिखना है, ऐसे नहीं कि कैपिटल एम लिखते हैं। ओके, कभी भी प्लूरल नहीं करते। जैसे हमने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स है, तो आप 10 न्यूटन्स नहीं करोगे, है ना। 10 सेंटीमीटर फोर्स है, तो आप ऐसे सेंटीमीटर्स ऐसे नहीं लगाओगे, सिंपल 10 सेंटीमीटर। समझा रहे बेटा, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें है ना ये। कभी भी आप 1 से ज्यादा सॉलिड्स यूज नहीं करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड्स, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा बेटा। जैसे हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये टॉपिक आपको बाद में आने वाला है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मतलब इस एनर्जी का यूनिट क्या बना, जूल डिवाइड बाय सेकंड्स डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। जो एरिया है ना वो क्या मीटर स्क्वायर में होता है, तो इसको ऐसे लिखना प्रेफर नहीं करेंगे, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये गलत है, गलत तो नहीं कहेंगे, मतलब ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है कि ये जो 2 बार हमने पर बोला, ये नहीं बोला। जूल पर सेकंड क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है पावर, तो ऐसे लिखेंगे वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सिंबल बना दिया, पर एक बार ही आया, है ना। वाट कहां से आया बेटा, देखो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, जो पावर होती है वो एनर्जी ओवर टाइम होती है। पावर इज एनर्जी ओवर टाइम। पावर वाट में होती है, एनर्जी जूल में होती है, टाइम सेकंड में होता है। तो जूल ओवर सेकंड क्या बना, वाट, तो जूल ओवर सेकंड को वाट लिख दो, ठीक है। 2 बार सॉलिड्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार। ओके, दूसरा, कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना उसमें। जैसे आपने लिखा 1 सेंटीमीटर, जैसे हम करते हैं ना शॉर्ट में, कभी भी कोई जैसे हम रेस्पेक्टिवली लिखते हैं तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेस्पेक्टिवली ऐसे कर दिया, डॉट लगा दिया, मतलब शॉर्ट में लिखा। यहां ऐसे नहीं करना होता है, यहां सेंटीमीटर सीधा ऐसे लिखना होता है। 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसको सेंटीमीटर की पावर 3 को इस तरह भी शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डॉट डॉट नहीं लगाना, 1 सीसी, सिंपल। ओके,